السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو آج جو بھی مشکلات و مسائل درپیش ہیں ان کا حل تلاش کرنے کے لیے علماء، فضلاء اور ملی درد رکھنے والے دانشوروں نے حضور بحر العلوم کے دوسرے عرس کے مبارک موقع پر اختلافات کی چھوٹی بڑی دیواروں کو منہدم کرنے کی مثبت کوشش کی اور تمام مسائل کا اسلامی حل تلاش کیا۔ پیش ہے علماء اور دانشوروں کے خطابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے چہرے کی تھکان یہ بتا رہی ہے کہ اب سننے لائق اور ہمارے پاس دماغ میں جگہ نہیں ہے۔ تو 2 روزہ یہ پروگرام تھا، اس کا بڑا کانسنٹریٹڈ مواد آپ کے دماغ میں جا چکا ہے۔ بہرحال میں بس اتنا کہوں گا کہ مفتی صاحب جو جانتے تھے وہ فراست رکھتے تھے، جو فراست ہمیں رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بار میں نے مفتی صاحب کے سامنے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر مدرسوں سے ملا کر کری تھی، تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے جواب میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان سے یہ بتایا تھا کہ سورہ کہف میں جیسے اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں تاکہ اللہ کے دین سے کوئی انہیں ہٹا نہ سکے، ٹھیک اسی طرح ہمارے عالم انگریزوں کے آنے کے بعد اپنا دین بچانے کے لیے گاؤں کی طرف مدرسوں میں جا کر انہوں نے اپنے دین کو قید کیا تاکہ دین پر کوئی آنچ نہ سکے۔ جیسے اصحاب کہف کی غار میں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی، ویسے ہی ہمارے مدرسوں کے اندر ماڈرن زمانے کی سوچ نہیں پہنچتی۔ جیسے وہاں اصحاب کہف کی غار کے باہر ایک ایمان پرستوں سے پیار کرنے والا کتا باہر بیٹھ کر پہرے داری کرتا اور جو بھی وہاں سے گزرتا قرآن کہتی ہے اس کتے کو دیکھ کر ڈر جاتا اور اس غار کی طرف نہیں جاتا، ویسے ہی چاہے جانے چاہے انجانے ہمارے مدرسوں میں ہمارے عالموں کا غصہ وہ باہر بیٹھ کر اس طرح کی پہرےداری کرتا کہ اندر جا کر اگر کوئی بتانا چاہتا وہ بات جو دین سے تھوڑی الگ ہے تو وہ ہمت نہ کر پاتا۔ وہاں پر اصحاب کہف کروٹ لیتے رہے، پھر اٹھے ہوئے بحث ہوئی کہ ہم کتنا عرصہ سوئے، آپ یہاں مطالعے پڑھے گئے، عنوان دیا گیا، اس میں یہ بحث ہے کہ کیا ہم سوئے تھے یا ہم جاگے ہیں یا ابھی ہمیں جاگنے کی اور ضرورت ہے۔ وہاں دین بچانے کے لیے اللہ کے کچھ بہترین ولی کار میں گئے تھے، یہاں اسلام بچانے کے لیے اللہ کے کچھ بہترین مدرس اور بہترین عالم انہوں نے مدرسوں کی طرف رخ کیا۔ جب میں نے یہ بات ان سے کہی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، مدرسہ اسلام بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آپ یہاں سے تو کہیے کہ ہم نے کس بیش قیمتی چیز کو کھویا ہے۔ اب آپ یہاں سے دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اسلام کو بچانے کے لیے مدرسوں کی بہت ضرورت ہے اور مدرسوں کو بچانے کے لیے ایمان پرست کاروباریوں کی بہت ضرورت ہے، اور ایمان پرست کاروباریوں کے کاروبار میں ترقی ہوتی رہے، اس کے لیے دنیاوی پڑھائی اعلیٰ درجے کی بہت ضروری ہے۔ وہ چیز جو ہم بہت سال دیکھ نہیں پائے کہ ہر ایک کو ہر ایک دوسرے کا سہارا، وہ
मुफ्ती साहब की फरासत थी तो उन्होंने सबसे पहले आप फिर से देखिए, इस्लाम बिना मदरसों के बच नहीं सकता, और मदरसे बिना हलाल की कमाई वाले कारोबारियों के बच नहीं सकते, और कारोबारियों की हलाल की कमाई में तरक्की होती है। आबिद भाई जैसे, मजहब भाई जैसे लोग अपनी मेहनत से इस्लाम को सीखते हैं, इसके लिए जरूरी है कि उनके बच्चे आला दर्जे की दुनियावी पढ़ाई भी पढ़ें। जब हमने बीज बोया तो हमने ये सोचा कि बीज पेड़ बन जाएगा बस। मुफ्ती साहब जानते थे कि बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी भी चाहिए, उसे हवा भी चाहिए, उसे धूप भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए, उसे सूरज की रोशनी। ये सब एक दूसरे की मदद करते हैं तब वो बीज पनपता है, और मदद करने वाली ये शय जितनी ताकतवर होती है, वो छोटा झाड़ उतना बड़ा बरगद का झाड़ बनता है। मुफ्ती साहब के ताल्लुकात किन लोगों से थे? बेहतरीन अपने जमाने के स्कॉलर से, अपने जमाने के सूफियों से, अपने जमाने के अमीर हलाल की रोटी कमाने वालों से, अपने जमाने के IAS डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंटों से, और अपने जमाने के गरीबों से थे, अपने जमाने के अमीरों से। और मुफ्ती साहब का ये सब लोग मरकज से अकीदत अगर कोई थे तो वो हमारे मुफ्ती साहब। मैं उनकी बारगाह में उस दिन भी गया जब वो एक बार दुबई से उतरे, दुबई से प्लेन से उतरे। हम उनको कार से लेकर आबिद भाई के घर आए। हजरत जो गए खुशामदी की खाना खाइए, वो खाना खाने के बाद भरी हुई बस में बैठ गए, और ड्राइवर का जहाँ गियर होता है बस इतनी भरी हुई थी कि उसमें जगह नहीं थी, वो गियर बॉक्स के बाजू बैठ गए, और आंखों में आंसू के आबिद भाई कहते हैं कि मेरी कार से चले जाइए करना, जो अभी दुबई से प्लेन से उतरा है वो गियर बॉक्स के बाजू बैठकर बस में बंगलोर जा रहा है। ये वो दौलत है तकवी थी जिससे खड़े खड़े IAS चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर सब असहाबे कहते जब सोकर उठे तो अपने दोस्त को एक सिक्का दिया, कहा जाओ अच्छा खाना खरीद ले आओ। जब वो सिक्का लेकर बाहर आए तो लोगों ने पहचान लिया, कहा ये बड़ा कीमती सिक्का है, अब नहीं चलता, क्या तुम्हारे हाथ में कोई खजाना लगा है? बहुत कीमती सिक्का। जब हम हजरत को ये तरह के कारनामे करते देखते तो उनके तकवे का सिक्का देखकर दिल ये कहता कि ये तकवे का सिक्का बहुत ऊंचा है, अब आसानी से नहीं। एक बार हम निकले दिल्ली से उनसे मिलने, आबिद भाई ने अपनी मोहब्बत से आगरा में हम सबको नाश्ता करा। हजरत फोन करके 20 बार पूछते कहाँ तक पहुंचे, और हर बार फोन रखने से पहले कहते नाश्ता यहाँ। जब हम पेट भरे यहाँ पहुंचे तो हजरत पूरा नाश्ता लेके बैठे, कहा नाश्ता करो। अब उनका दिल नहीं हो सकते थे तो मैंने ब्रेड का आधा टुकड़ा तोड़ के खा लिया, मैंने आधा टुकड़ा छोड़ दिया। हजरत ने मुझसे जबरदस्ती नहीं की, पर तकवा देखिए, उन्होंने तो आधा टुकड़ा ब्रेड का अपने हाथ में दबा लिया, सबकी नजर बचा के अपने हाथ में दबा लिया, और आधा घंटा मुझसे बात करते रहे। उस ब्रेड के टुकड़े को हाथ में लेकर जब चाय आई तो उसमें डुबाकर चुपचाप खाया। ये वो सिक्का है जिससे नबी पाक के मानने वाले अच्छे पढ़े लिखे लोग खरीदे जा सकते हैं, वरना वो किसी भी दौलत से खरीदे। ये वो सिक्का है, ये वो तकवा है। एक बार 2 साल पहले दिल्ली में आबिद भाई ने उनके कमरे में AC लगवाया,
2 साल बाद ये हुआ कि आज घर चलो, सीधा घर पे मिलने आना, मुझसे खानका में मत मिलना, स्कूल में मत मिलना, घर पे आना। जब हम घर पहुंचे तो इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है, पूछा कि क्या कर रहा है, क्या एसी जोड़ रहा है, क्या एसी आज भी जोड़ रहा है, क्या तुम आने वाले थे इसलिए एसी चालू करवा रहा हूं, 2 साल से ये एसी यही पड़ा है, मैंने एसी चालू नहीं। वो शख्स, उन्होंने भरी भरी आवाज में मुझसे कहा था, मुझे लगता है कि अब मैं थक गया हूं, मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया है, अब मैं शायद अपने महबूब से मिलने जा रहा हूं, और अगर मैं चला गया तो मुझसे वादा करो, मेरे मदरसे में दुनिया में जो कुछ भी बेहतरीन हो रहा है उसके जानकारों को लाकर मेरे उलमाओं को उसकी जानकारी दिलवाओ। और उनका एक आखिरी सपना था, कन्नौज के मुसलमानों सुन लो, उनका एक आखिरी सपना था, वो शख्स जिसकी चप्पल 90 रुपये की थी, आखिरी वक्तों में वो एक मेडिकल कॉलेज कन्नौज में बनवाना चाहता। आज वो महबूब अपने मुहिब से मिल रहा है, तो क्या उस महबूब को मानने वाले जो यहाँ बैठे हैं हाथ उठाकर एक वादा कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? हाथ उठाइए, वादा करिए, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, भले आदमी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और हजरत जो चाहते थे बस वो सुन लो, दिल बादशाह है, इसकी जिंदगी कुरान की आयतों से आती है, कुरान की आयतों की तफसीर से आती है। दिल बादशाह है, ये किसी की नहीं सुनता सिवाय उस बादशाहों के बादशाह। जिस दिन वो बादशाहों का बादशाह हमारा रब कहता है कि दिल धड़क, उस दिन से दिल धड़कना शुरू होता है, और उस दिन तक धड़कता रहता है जिस दिन तक अल्लाह ये कह दे इस दिल पर किसी का जोर, आप जोर लगा के देखिए, बैठे बैठे अपने दिल से कहिए थोड़ा धीरे धीरे धड़क, कहिए धीरे धीरे धड़क, क्या कुछ हो रहा है? नहीं हो। अब आप अपने दिल से कहिए जोर जोर से धड़क, देखिए क्या कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? दिल बादशाह है, सिवाय अल्लाह के किसी का हुक्म नहीं सुनता। आपका दिमाग दिल को हुक्म दे तो दिल मानेगा क्या? दिल मानेगा नहीं। मुफ्ती साहब कहते थे कि इमाम गिजाली की किताबों में लिखा है, दिल बादशाह है, रब की सुनता है, इसकी जिंदगी कुरान की आयतों और हदीसों से आती है, लेकिन दिमाग वजीर है। अल्लाह ने इस वजीर को बनाया ताकि दुनियावी पढ़ाई पढ़े और अपने परिवार, अपने रियाया के लिए हलाल की रोजी का बंदोबस्त करे। जब से हमने स्कूलों में जाना छोड़ दिया, हमारा वजीर मर गया, और जब से हमने कुरान की तफसीर को समझना छोड़ दिया, हमारा बादशाह मर गया। तो जितने दुनिया के ग्रेजुएट्स यहाँ बैठे हैं, उनसे हाथ जोड़कर मुफ्ती साहब का पैगाम है कि ये दुनिया के ग्रेजुएट्स, तुम्हारा दिमाग पढ़ा लिखा जिंदा वजीर है, तुम्हें जरूरत है मदरसे में आकर कुरान और हदीस से अपने बादशाह को जिंदा करने। तो अगर तुम्हारा दिमाग दुनियावी ग्रेजुएशन कर चुका, वो बेहतरीन नॉलेज ले चुका, तो मदरसे की तरफ आओ और आकर अपने दिल को जिंदा करो। लेकिन मेरे मुफ्ती साहब सिर्फ इतने पे रुक जाते तो फिर वो बहबुल इरफान क्या होते? उनका एक और कहना था कि ऐ आलिम, ऐ फाजिल, ऐ बेहतरीन उलमा जो अल्लाह के रसूल के वारिस हो, तुम्हारा दिल जिंदा है, कुरान और हदीस की वजह से तुम्हारा दिल जिंदा है, लेकिन तुमने दुनियावी ग्रेजुएशन नहीं किया,
तो इसलिए तुम्हारा वजीर कमजोर है। तो आलिमों उठो, यूनिवर्सिटी की तरफ चलो, तुम्हारे जिंदा दिल के साथ तुम्हारे वजीर को जिंदा। जिसका वजीर जिंदा है वो मदरसे में आए बादशाह को जिंदा करे, और जिसका बादशाह जिंदा है वो यूनिवर्सिटी जाए वजीर को जिंदा करे। और जिस कौम के आलिमों का बादशाह और वजीर दोनों जिंदा हो, उस कौम को लूटा या हराया नहीं जा सकता। इसीलिए दारुल उलूम के बाजू एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मदरसे के आंगन में CBSE स्कूल होना चाहिए। इसीलिए मदरसे की दीवारों पर वाईफाई होना चाहिए, ताकि बादशाह दिल भी जिंदा हो और दिमाग वजीर भी। उठाओ अपने दोनों हाथ और करो वादा मुझसे कि हम अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की मुकम्मल तालीम देंगे। कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह। और उठा के हाथ मुझसे वादा करो कि हम मुफ्ती आजम बहन इरफान का वो अधूरा सपना पूरा करेंगे। उठाओ हाथ और कहो कि पूरा करेंगे। हमारे बच्चे कलेक्टर भी बनेंगे और वो हाफिज़े कुरान भी बनेंगे। हमारे बच्चे डॉक्टरी भी करेंगे और जब अज़ान होगी तो वो सामने की सब में आकर इमामत भी करेंगे। मेरे दोस्त बहुत दूर से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनको 5 मिनट सुने। वैसे भी अब आपके चेहरे बता रहे हैं कि बहुत सारी ताकत और तवानाई अब आप में आ गई है। तो मुफ्ती साहब की मोहब्बत बहुत दूर से जिनको खींच कर लाई है, ऐसे खालिद सैफ साहब हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर के जादूगर हैं कि जो सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो हजारों लोगों की जानें बच जाती हैं। उनके इस बेहतरीन काम को आप 5 मिनट सुनिए और समझिए कि हमें कैसे दीन और दुनिया दोनों की तालीम देना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।